today's topic is the full-fledged question of the retirement chapter, how to record the transaction related to full-fledged question. Okay, and today I will be sharing a question, then after I will be explaining. So students, स्क्रीन आपको विजिबल है? स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? ओके, Yes, sir. okay students, so again just ready with your notebook and pen, because you people are required to calculation also if required in the question, so that you can understand how it's to be calculated. Okay, so okay students, so now I'm going to start. So here, 1 minute, question is in front of you. It is saying that A, B and C were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2, right? And their balance sheet as at 1st April 2018 was as follows. So you should take the screenshot of the full-fledged question when I'll be sharing. Just see here. This is the introduction information of the question. There were three partners, ABC, who were sharing profit and loss in 5:3:2. And the balance sheet as at 1st April 2018 was as follows. Now further information you will find here, the balance sheet. Now balance sheet is in front of you. It is showing that in liability side you having the sundry creditors, employees provident fund, reserve fund, workmen compensation reserve, capital accounts of A, B and C, and in asset side cash, sundry debtors, stock, furniture, patents, buildings and goodwill. Okay students, so you take the screenshot of this question. Now I'll be sharing the additional information. So have you taken? Anjali, done? Yes, sir. Okay, so I hope you all have taken. So okay students, now you will write the additional information, or you can take the screenshot. So additional information is saying C retires on above date and the partners agreed that, first point, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of the last 4 years. Profits for the last 4 years are as on 31st March 2015 rupees 14,000, 2016 rupees 20,000, 2017 rupees 10,000 loss, and 2018 rupees 15,600. Second information, 5% provision for doubtful debt to be maintained are made on debtors. Third, stock be appreciated by 10%. एंड पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मींस पेटेंट्स की जो वैल्यू बैलेंस शीट में थी वो जीरो हो गई. ओके, आगे कह रहा है बिल्डिंग्स बी एप्रिसिएटेड, मींस बढ़ाया जाए इसकी वैल्यू बाय 20%. नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड रुपीज 2,000 मोर, मींस क्रेडिटर्स जो भी बैलेंस शीट में था अब नए बैलेंस शीट में 2,000 रुपये ज्यादा दिखाना होगा क्योंकि ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो इट्स अ लॉस more than the book value. Further information is saying pass journal entries and prepare re-evaluation account, capital account and the balance sheet of the new firm. Student, take the screenshot of the full question. So in first slide you have taken the first part of the question and second slide the second part of the question. So अब हम लोगों को करना क्या है कि we have to study, we have to prepare journal entries and revaluation account, capital account and balance sheet. Okay, so I hope you all have taken the assess of this. Mahima, done?
Yes, sir. Okay, so now we are moving for the next slide. I will be explaining how is to be recorded. Okay, so students, first, as I have taught you all people in the admission chapter, what are the steps should be taken to pass the journal entry in full-fledged question, and what are the steps to be taken in the uh, at the time of preparing the capital account and the full-fledged question. So likewise, I will teach you today what are the steps we should take to prepare journal entry of a full-fledged question. Means अगर पूरा information है question का, कोई extraction नहीं है. So far we had studied some part of the question only. Sometimes we have passed for the calculation of new ratio and goodwill of the न्यू फॉर्म ऑफ द गुडविल. जो भी गुडविल है नए फॉर्म का, उसका रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों ने बातें की थी, तरह तरह की छोटे छोटे क्वेश्चंस. बट आज हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे. इसमें तो स्टेप्स देखिए, सबसे पहले क्या है. फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट, जनरल एंट्री करना हो तो अक्सर स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि फ्रॉम वेयर वी शुड. ओके, और आफ्टर स्टार्टिंग उनको ये भी नहीं पता होता या कंफ्यूजन होता है लास्ट में कि क्या उन्होंने सारा क्वेश्चन मतलब सारा इंफॉर्मेशन पूरा अच्छे से कर लिया सॉल्यूशन उसका या नहीं, या कुछ बाकी रह गया. तो अक्सर वो कंफ्यूज रहते हैं, है ना. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिंगर्स टिप पे मैंने बताया था एडमिशन टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को कि फिंगर्स पे आप लर्न कर लो क्या क्या स्टेप्स हमको पढ़ने हैं, है ना. सो पहला स्टेप है जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप याद रखो कि क्या पास करना है. जर्नल एंट्री शुड बी रिलेटेड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड फिक्सचर्स एसेट्स. जैसा कि मैंने पढ़ाया है आपको इस चैप्टर में, तो आपको पता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व कहाँ होता है, लायबिलिटी साइड में, और फिक्सचर्स एसेट्स एंड ओल्ड गुडविल ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, एसेट साइड में. सबसे पहले इसका रिकॉर्ड कर लेंगे. तो एक स्टेप जब खत्म हो जाएगा तब हम दूसरे की तरफ फोकस करेंगे. अगर आप एक साथ सारे इंफॉर्मेशन को रीड करने लगो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना. तो पहले आप देखो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व एंड फिक्सचर्स एसेट से इंफॉर्मेशन कहाँ दिया हुआ है और क्या क्या है, तो पहले उसका रिकॉर्ड करेंगे. सेकेंड स्टेप आप लोगे वी रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. तो दूसरे नंबर पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे कि revaluation of asset and liability due to change in the price of the assets and liability at the time of change in agreement due to retirement. Okay, तो जब भी कभी रिटायर होगा कोई पार्टनर या कोई एडमिशन होता है या किसी का डेथ होता है तो आपको पता है उस टाइम रीवैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज का, क्योंकि एट द मोमेंट वी नीड टू फाइंड द करेंट और एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी. सो आपको पता है कि रिवॉल्यूशन की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ये भी हमने पिछले क्लास में ही अभी पढ़ाया था लास्ट टाइम, और इसका रिवीजन के लिए भी मैंने सेंड कर दिया था आप लोगों को. नेक्स्ट बेटा आपको पढ़ाया था मैंने इस चैप्टर में, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ाया था तो उसके जस्ट इमीडिएटली बाद आपको मैंने पढ़ाया गुडविल एडजस्टमेंट. जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल का रिकॉर्ड कैसे किया जाता है. तो आपको पता है गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. कौन से गुडविल, न्यू गुडविल के बारे में हम बात कर रहे हैं. यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, एंड इन केस ऑफ रिटायरमेंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ही तुम्हारा रिटायरिंग पार्टनर ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है ना, क्योंकि वो फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो अपना शेयर वो सैक्रिफाइस करके जा रहा है. तो और चूंकि ये रिटायरमेंट चैप्टर में नई टॉपिक है, जो लोग सेकेंड चैप्टर पढ़े हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें भी यही चीज़ें हैं. जितना भी तीनों स्टेप के बारे में मैंने बात किया, ये तीनों स्टेप आप ऊपर से तीनों आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ चुके हैं और एडमिशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एडमिशन में गुडविल का प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने. ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं क्या पढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्या है, रिटायरमेंट में जब यहाँ तक हो जाएगा, आपको पता है कि रिटायरिंग पार्टनर में यानी रिटायरमेंट में कोई पार्टनर पैसा लेकर तो आता नहीं है कैपिटल के लिए, क्योंकि यहाँ तो फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो हमको पेमेंट करना होता है ना. तो यहाँ करेंगे क्या, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसका हम सेटलमेंट करेंगे.
तो सेटलमेंट करने का दो तरीका है स्टूडेंट्स, ध्यान रखो। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट किस तरीके से किया जाना है, if there is no information regarding settlement of retiring partner is given in the question, so first we find the balance of the retiring partner ड्यू टू हिम। पहले तो हम ये पता करेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल का कितना बैलेंस आ रहा है जो कि हमें उसे देना है। उस पैसे को हम करेंगे क्या, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान से समझना, सेटलमेंट के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो जितना भी पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना होगा वो पूरा पैसा हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और बाद में उस लोन को धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि क्वेश्चन में खुद लिखा होगा कि रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इमीडिएटली। तो अगर बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर को तुरंत पेमेंट कर देना है तब हम उसका पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे और उसी समय टू कैश या टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया दो चीजें, या तो लोन में ट्रांसफर करते हैं या तो हम पेमेंट कर देते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में खुद लिखा होता है कि कुछ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए और कुछ पैसा जो है बचा हुआ उसे पेमेंट कर दिया जाए। तो दोनों भी हो सकता है, यानी कि वो 3 कॉन्सेप्ट हुआ बेटा। सब लोग ध्यान से समझना, या तो पैसा लोन में ट्रांसफर होगा या तो इमीडिएटली पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या होगा, कुछ पेमेंट किया जा सकता है और बाकी का पैसा लोन में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जो भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट किया जाएगा। सो देखो यही 4 स्टेप हम लोगों को फॉलो करना है। हालांकि एक स्टेप है, रेयरली अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो उसकी भी एंट्री इसमें कर लेनी होगी। मैंने लिखा नहीं है, एडमिशन में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कॉमन एंट्री है। ठीक है, वो रेयरली आता है। तो हम लोग आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू ऑल आर रेडी। स्टूडेंट्स यू ऑल आर रेडी विद नोटबुक, बताइए। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। पीयूष, यस बेटा, व्हाट you have raised your hands, is there confusion, anything? No, sir. Okay, so आनंद, अनिकेत, अनिमेश, सब लोग सब रेडी किए हो ना? आप लोग नोटबुक लेकर बैठे हो? हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। और जब कैलकुलेशन की बात होगी तो आप लोग करेंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। ओके, सो यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने नोट्स के रूप में भी लिखा है, आप नोट देख लो। कुछ नोट आपके सामने लिखा होगा, क्योंकि ये जो सारा स्टेप्स मैंने बताया है अभी वो जर्नल एंट्री के लिए बताया, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम क्या करेंगे। सो देखो नीचे नोट्स लिखा होगा, व्हेन वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑल द स्टेप्स वुड बी एज इट इज। जो ऊपर स्टेप बताया वो सब एज इट इज रहेगा, ओनली बिफोर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वी राइट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो जब भी कभी कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे एंड एट लास्ट वी राइट क्लोजिंग बैलेंस, राइट। फिर हम उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना कैसे करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे स्टेप्स का। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so students, now this is what journal entry. How to pass the journal entry? We will do study here. Okay, so जैसा कि पहले मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री किसका करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का। तो आपके पास क्वेश्चन होगा, स्क्रीनशॉट आप देखो, इसमें दिया होगा लायबिलिटी में रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो लायबिलिटी साइड में यही दो तरीके का रिजर्व दिख रहा है। ठीक है। तो और एम्प्लॉय फंड तो लायबिलिटी होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। सो हम लोग सबसे पहले रिजर्व फंड की एंट्री करते हैं और फिर WCR की। ओके, सो आप देखो रिजर्व फंड की एंट्री कैसे होनी है। सो आपका क्वेश्चन में 1 अप्रैल को बैलेंस शीट दिया हुआ है, आप देखो डेट पर्टिकुलर LF और डेबिट और क्रेडिट। ओके,
So 2018 April 1st. The reserve fund is given of rupees 6,000. Okay, students, you will see in the question reserve fund account debit is given 6,000. Okay, or this 6,000 to be distributed in the old partners between old ratio. तो old partner कौन है? A, B और C सभी old partner होते हैं, even retiring भी. कितने लोग क्या करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को नहीं बांटते हैं, वो गलत हो जाएगा बेटा. रिटायरिंग भी तो ओल्ड पार्टनर ही है, वो तो अब रिटायर ले रहा है, एडमिशन थोड़ी है कि यहाँ सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स. तो किस रेशियो बांटेंगे? आपके पास क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट होगा, आप देखो उसमें 5:3:2 लिखा होगा. सो 5:3:2 में शेयर करेंगे. आपके पास पेन पेपर होगा, नोटबुक, आप तुरंत कैलकुलेट कर लो, इसीलिए मैंने बोला इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन आप पेन पेपर से कर सकते हो, बाद में इसका नोट्स बना लोगे. सो 6,000 को 5/10 करेंगे तो आएगा 3,000, फिर उसका 3/10 करेंगे तो आएगा 1,800 और 2/10 करेंगे तो आएगा 1,200, क्योंकि 5:3:2 में शेयर करना है. ओके, तो रिजर्व फंड हो गया. कौन सा रिजर्व बचा लायबिलिटी में? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ओके, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखो आप सभी लोग, सेम एंट्री होनी है बेटा. ये आपके सामने अब क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का क्वेश्चन में दिया है लायबिलिटी साइड में? 2,000 का. और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड, तो फुल अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ओके, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,000 टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल. राइट, सो रेशियो क्या है इनका? 5:3:2 है, आपके पास क्वेश्चन है उसमें दिया होगा. 5/10 करेंगे तो 1,000 आएगा, 3/10 करेंगे तो 600 आएगा, और 2,000 का 2/10 करेंगे तो 400 आएगा. सो देखो ये भी हमने बांट दिया. तो अब आप क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट लिए होगे, उसमें सिर्फ यही 2 रिजर्व था लायबिलिटी में. अब हम जब भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व की बात करते हैं तो ये याद रखो कि फिक्सिशियस एसेट भी साथ में आ जाता है. तो हमको लायबिलिटी साइड वाले आइटम को तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब हम एसेट साइड वाला आइटम भी चेक करेंगे कि क्या कुछ है या नहीं, जैसे फिक्सिशियस एसेट लाइक एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस या ओल्ड गुडविल, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, क्या दिया हुआ है. तो आप चेक करो एसेट्स में, तो सबसे लास्ट में गुडविल 6,000 का दिया हुआ है. आप चेक करेंगे तो गुडविल 6,000 का है, तो उसे राइट अप करना होता है क्योंकि ये ओल्ड गुडविल कहलाता है ना. सो हम लोग आते हैं ओल्ड गुडविल पे, रिकॉर्ड करते हैं. सो स्टूडेंट आप देखो, ओल्ड गुडविल का रिकॉर्ड करना है. लग रहा है पहले हमने रिवोल्यूशन की जनरलिटी कर दी है, हम उसका दिखा देते हैं. ओल्ड गुडविल भी राइट अप होगा और उसकी एंट्री हम आगे करेंगे. पहले हम रिवोल्यूशन पर लग रहा है आगे, इसके बाद. ठीक है, तो ओल्ड गुडविल की एंट्री आगे के स्लाइड में आपको मिलेगा, और वो राइट अप होता है, सभी ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे. तो आगे हम दिखाएंगे. आते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन पे, क्योंकि दूसरा स्टेप क्या है आप लोगों का? रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन मीन्स टू रिकॉर्ड द चेंज इन प्राइस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ओके, सो अब आप चेक करो, रिवैल्यूएशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है. पहला इंफॉर्मेशन तो गुडविल का दिया है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, तो वो रिवोल्यूशन में तो आएगा नहीं, उसका आप अलग करेंगे. लेकिन सेकंड इंफॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन का स्लाइड होगा सेकंड पार्ट का, जिसमें हमने वो लिखा हुआ है सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन. सो आपको दिखेगा उसमें लिखा है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी मेड ऑन डेटर्स. इजंट यही है ना तनिष्का? सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है? ओके, तो हम लोग 5% कैलकुलेट करेंगे. तो देखो बेटा आप सभी लोग, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर दूसरे नंबर पे दिया होगा 8,000 रुपए का, और कोई प्रोविजन पहले से नहीं है क्वेश्चन में. तो आप लोग को मैंने लिखवाया था रिवोल्यूशन में इंक्रीज इन प्रोविजन लॉस होता है ना, और लॉस होने पे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट और रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो रिवोल्यूशन अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया, लेकिन अमाउंट 6,400 भी नहीं लिखेंगे यहाँ जो लिखा है. पहले हम देखेंगे किन किन चीज़ों पे लॉस हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम 3 एंट्री मैंने बताया था. पहला लॉस, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा क्लोजिंग एंट्री. ठीक है, सो सबसे पहले देखो 5% डाउटफुल डेब्ट निकालना है, तो 8,000 का डेटर है, आप पेन पेपर रखे हो, 8,000 का 5% मेंटेन करना है. तो आप 5% कैलकुलेट करो फटाफट और देखो कितना आ रहा है. 400 आ रहा होगा जो मैंने लिखा है.
तो 8000 इंटू 5% विल बी 400। पहले से कोई प्रोविजन नहीं था तो पूरा का पूरा क्रिएट करना है, तो 400 रुपये से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लिखेंगे। फिर थर्ड इंफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है स्टॉक भी एप्रिसिएटेड। स्टॉक एसेट्स है और एप्रिसिएट किया जा रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला प्रॉफिट वाले एंट्री के साथ लिखना होता है, लॉस वाला लॉस की एंट्री के साथ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब फोर्थ वाला इंफॉर्मेशन पढ़ो आप, तो लिखा होगा पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। मतलब वैल्यूलेस का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो ध्यान से समझो। वैल्यूलेस मीन्स होता है जीरो हो गया, वैल्यूलेस मीन्स जीरो, ओके। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, ये ध्यान रखो। तो पेटेंट कितने का दिया है क्वेश्चन में, 4000 का। बैलेंस शीट में पेटेंट 4000 का है, ठीक है। अब उस 4000 रुपए के पेटेंट्स का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। और पेटेंट होता क्या है हमारे लिए, एसेट्स। तो एसेट्स की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया पूरा का पूरा 4000। तो 4000 रुपये से क्रेडिट कर दिया पेटेंट को भी। अब आगे कह रहा है कि बिल्डिंग्स भी एप्रिसिएटेड। तो बिल्डिंग एसेट्स होता है और एप्रिसिएटेड का मतलब होता है कि प्रॉफिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ता है तो प्रॉफिट वाला प्रॉफिट के साथ करना है, तो इसको छोड़ देंगे। अब आते हैं 6 पे, जो ट्रांजेक्शन दिया है। तो 6 में लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड ₹2000 मोर देन द बुक वैल्यू, ओके। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है और 2000 रुपया अब ज़्यादा पेमेंट करना है, ठीक है। जब 2000 ज़्यादा पेमेंट करना है तो कितना हो जाएगा, अब लॉस होगा ये ऑब्वियसली, तो लॉस होगा तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। अब इन सभी को ऐड कर लो, तो 2000, 4000 और 400, तो हो जाएगा 6400। तो ये हो गया लॉस वाले आइटम के लिए रिवोल्यूशन, ओके। आई होप कि दिस इज अंडरस्टूड बाय यू ऑल पीपल। अंजलि, अंजलि, इज इट शोइंग प्रॉपरली? यस सर। क्लियर है यहाँ तक, रिवोल्यूशन कैसे हुआ, लॉस? यस सर। ओके, आनंद, आनंद, हाँ हाँ बेटा समझ में आ रहा है रिवोल्यूशन कैसे हुआ? हाँ सर। चलो ठीक है, बाकी लोग ध्यान देते रहो, आप भी लोग। अब आते हैं हम लोग, कुछ आइटम पे तो लॉस हो गया, कुछ आइटम पे प्रॉफिट होता है, तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो आप, प्रॉफिट किस पे हो रहा है, तो आपके पास थर्ड इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, लिखा होगा स्टॉक भी एप्रिसिएटेड बाई 10%। एप्रिसिएटेड का मतलब इंक्रीज होना, कितने से, 10% से, ठीक है। तो स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 40,000 का, 40,000 का दिया है, तो 40,000 का 10% निकालो तो 4,000 आ रहा है, तो स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 4000। और बाद में लिखा है फिफ्थ वाले पर कि बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से बढ़ाना है, तो बिल्डिंग कितने का दिया है, 60,000 का, तो 60,000 का 20% 12,000 आएगा। सो बिल्डिंग भी इंक्रीज हो रही है, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सो ये दोनों क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट के समय रिवोल्यूशन को क्या करेंगे, क्रेडिट। सो टू रिवोल्यूशन अकाउंट 16,000, ठीक है। सो अब आपको ये समझ में आ गया कि पहली एंट्री हमने लॉस के लिए कर लिया ऑल टुगेदर, एंड दूसरी एंट्री प्रॉफिट के लिए कर लिया। अब हमको ये पता करना है कि एक्चुअली नेट इफेक्ट क्या है यार रिवोल्यूशन का, नेट प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो हम कंपेयर करते हैं। सो देखो रिवोल्यूशन का जो डेबिट है वो 6400 है और रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट है वो 16,000 है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि क्रेडिट वाला ज़्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा और क्रेडिट बैलेंस को प्रॉफिट कहते हैं, है ना। तो नेट इफेक्ट प्रॉफिट कितने रुपए से हुआ, तो 16,000 में से 6,400 को हम माइनस करेंगे तो आएगा 10,600, राइट। तो 10,600 रुपये आएंगे। अब इस 10,600 में कह रहा हूँ 9,600 आएगा। 9,600 रुपए को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ऑल ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, जैसा कि आप पढ़ चुके हो पहले से, ओके। सो हियर यू कैन सी, चूंकि क्रेडिट बैलेंस 9,600 से ज़्यादा है तो 9,600 से रिवैल्यूएशन को डिविड कर देंगे ताकि अकाउंट क्लोज हो जाए। अब देखो क्रेडिट 16,000 था, यहाँ डेबिट 6,400 था और यहाँ डेबिट 9,600 कर दिया, तो अब 9, 6, 15, 16,000 हो गया ना बराबर, तो क्लोज हो गया। यानी कि जब क्रेडिट ज़्यादा हो तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे और जितने भी ओल्ड पार्टनर है, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल, सबको बांट देंगे किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 5
1:3:2. So 9600 into 5/10 into 3/10 into 2/10 एक एक बार करेंगे। पेन पेपर आपके पास है, सॉल्व करके चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन मेरा रॉन्ग लिखा होता है, आप लोग हमेशा कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक है। सो यहाँ तक रिवॉल्यूशन का सेकेंड स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट। अभी हमारा ओल्ड गुडविल बचा है, देखो जर्नल एंट्री में मैंने उस समय नहीं किया था, आगे हम करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लो, ओके डन। स्क्रीनशॉट, कोई कंफ्यूजन किसी को? आशुतोष गिरी स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर, हो गया, डन। ओके सो आगे जर्नल एंट्री हम लोग को, अब देखो यहाँ पर बेटा जो मैं बता रहा था ओल्ड गुडविल, आप बैलेंस शीट में देखोगे 6,000 रुपए की गुडविल दी है, तो जब भी कभी ओल्ड गुडविल होती है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व के साथ ही आता है। हम इसकी एंट्री बाद में लग रहा है कर दिए थे, तो बाद में देखे होंगे। तो गुडविल आपको क्या करना है, ओल्ड गुडविल जितना भी रहता है उसको राइट ऑफ करते हैं बिटवीन ऑल ओल्ड पार्टनर्स बाय डेबिटिंग देयर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। उनका डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट और उनके ओल्ड रेशियो में। तो देखो ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 6,000 ये पुराना गुडविल है जो बैलेंस शीट में अपीयर था। इसको किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो 3:2:1 सॉरी 5:3:2 में बांटना है। सो 5/10 करेंगे तो 3,000 आएगा, फिर 6,000 का 3/10 करेंगे तो 1,800, और इसका फिर 2/10 करेंगे तो 1,200 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके चेक कर लो। तो देखो बेटा अभी तक हम लोगों ने कितने स्टेप कंप्लीट किए, सिर्फ 2 स्टेप। पहला स्टेप किया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट्स में, ये गुडविल वाला सब कुछ हो गया। और दूसरे स्टेप में जो हमने किया रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कर लिया। तो पहला और दूसरा स्टेप हुआ होगा जो आज मैंने बताया आप लोगों को। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप क्या है, आप देखो थर्ड स्टेप है आपको गुडविल का रिकॉर्ड करना। कौन सा गुडविल, नया वाला गुडविल। तो सभी लोग के पास पेन पेपर है, सभी लोग क्वेश्चन लिखे हो, आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने लिखवाया था सेकेंड स्लाइड में, आज स्क्रीनशॉट लिए होंगे। उसमें लिखा होगा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द years ending 31st March were 14,400, 20,000, 10,000 लॉस और 15,600, इतना दिया हुआ है। तो सभी लोग गुडविल के अमाउंट निकाल कर हमें बताइए अभी। सभी लोग के पास है डिटेल ना, बताइए भाई। आप सभी लोग को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, डिटेल है सभी के पास। गुडविल कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट से? यस सर। हाँ आप लोग वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए भाई, वॉल्यूम बड़ा स्लो आपका आ रहा है। चलो ठीक है, आनंद गुडविल निकालो एवरेज प्रॉफिट से। जो स्क्रीनशॉट शेयर किए होंगे गुडविल का पहला इंफॉर्मेशन देखो 15, 16, 17। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? निकाल रहे हैं, रुको। हाँ हाँ करो करो करो, सभी लोग करो भाई। अंजलि, आशुतोष, गौतम, महिमा, सभी लोग करो। जिसका गुडविल का अमाउंट आ जाए वो बताएगा, हैंड रेस करके बता सकता है। हैंड रेस कर लो, चैट बॉक्स है तो उसमें मैसेज कर सकते हैं आप। सर इसका आएगा 19,800। कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट, कितना आया बेटा? सर एवरेज प्रॉफिट 9,900। कैसे बेटा, आपका प्रॉफिट कितना है? पहले साल का प्रॉफिट कितना लिखा है आपने? 14,400। ओके एसपी शिवानी पटेल। हाँ बेटा शिवानी बताओ। शिवानी एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 10,000। बेटा पहले साल का प्रॉफिट कितना लिखा है आपने? सर 14,400। हाँ दूसरे साल का प्रॉफिट? 20,000। ठीक, तीसरे साल का?
10,000 मतलब कि वो माइनस करना है। हाँ माइनस करेंगे, फिर 15,600 है लास्ट, लास्ट प्रॉफिट 15,600 है, तो टोटल Yes, करेंगे sir. तो कितना आ रहा है टोटल, टोटल कितना आ रहा है? सर वो 50 आ रहा है, फिर 10 माइनस किए तो 40,000। 40,000 आ रहा है, तो 40,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट? सर 10,000। 10,000। वेरी गुड। नंबर ऑफ ईयर कितना है मल्टीप्लाई करने के लिए? परचेसिंग ईयर। सर 2। हाँ आनंद बताओ। 20,000। 20,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो 20,000 आएगा आप लोग का, जब टोटल प्रॉफिट 40,000 था, 4 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 10,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 रुपया आ जाएगा गुडविल। वेरी गुड आनंद। शिवानी यू हैव गुड राइट। और किसका था, जो भी था, देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होंगी आप सभी लोग। तो 20,000 रुपया फर्म की गुडविल है। शिवानी अब ये बताओ कि रिटायरिंग पार्टनर जो है, कौन रिटायर हो रहा है? सी इज गेटिंग रिटायर ना शिवानी? यस सर। तो सी Yes, sir. रिटायर हो रहा है, तो बेटा सी का शेयर कितना है? 2/10। 2/10, हाँ सर 2/10 है। 2/10 कैलकुलेट करो 20,000 में से, तो कितना आ रहा है? सर 4,000। 4,000। वेरी गुड। तो देखो आपके सामने एंट्री दिख रही है स्क्रीन पे। यस सर। हाँ तो देखो सी में कितना लिखा है? टू सीज कैपिटल 4,000, बिकॉज शी इज रिटायरिंग पार्टनर, है ना, और रिटायरिंग पार्टनर ऑलवेज भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सेक्रीफाइसिंग को मिलता है। अब इसको कौन देगा? जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी इन देयर गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो इनका ओल्ड रेशियो जो है 5:3, क्योंकि तीनों का रेशियो क्या था? 5, 3 और 2 था। तो सी तो छोड़ के जा रहा है, तो सी को हटा दो यहां से, तो बचा क्या? 5:3, क्योंकि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है रेशियो के लिए, है ना। तो 5:3 में आप क्या करेंगे? इस 4,000 रुपए को बांट देंगे। सो ए विल कंपनसेट 2,500 एंड बी विल कंपनसेट 1,500, राइट। सो 2,500 एंड 1,500 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 5:3 का मतलब 5/8 एंड 3/8। ठीक है, तो आपका ये स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप सभी को समझ में आ गया? पहले हम गुडविल निकालते हैं, अगर गुडविल दिया होता तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, बट कैलकुलेट करके नहीं दिया था, तो पहले गुडविल वैल्यूएट किया, फिर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट किया, और फिर उसको जो भी पार्टनर गेन कर रहे हैं रिमेनिंग, वो कंपनसेट कर दिया। तो हमेशा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होता है। तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स इज द रिटायरिंग पार्टनर ना। यहां तक हो गया। तो अब आप लोगों को जनरल एंट्री जो करना है, यहां तक तो क्लियर है। अब सेटलमेंट की जनरल एंट्री करनी होती है आप लोगों को। तो सेटलमेंट की एंट्री तब करेंगे जब हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले ले आप लोग। तनिष्का टेकन स्क्रीनशॉट? नो सर अभी ले रहे हैं। हाँ ले लो। समझ में आ गया सॉल्यूशन सभी को यहां तक? यस सर। गौतम? यस सर। गौतम समझ में आ रहा है? गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइजिंग क्रेडिट। चलो ठीक है। यस सर। अभी देखो इसके बाद, हाँ इसके बाद भी जनरल एंट्री करना है, लेकिन जो जनरल एंट्री करना है वो किसका करना है? सेटलमेंट का। ठीक है, तो सेटलमेंट का एक एंट्री करना है। वो एंट्री कब होगी? जब हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तब। लेकिन हमने पहले ही जनरल एंट्री करके रखा हुआ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अमाउंट टैली कर लोगे आप सभी लोग। ठीक है, तो हम अभी शेयर कर देते हैं वो लास्ट जनरल एंट्री सेटलमेंट वाला। ये एंट्री भी आप लोग ले लो भाई। देखो जितने लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं, अभी रेड वाला जो स्लाइड अभी मैंने ऐड किया, रेड वाला स्ट्रिप का, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि सी को इमीडिएटली पेमेंट करना है, कहीं भी नहीं लिखा है। तो जब नहीं लिखा है कुछ भी, तो हम सी को जितना भी पेमेंट करना है उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अब वो पार्टनर तो रहा नहीं,
उसका कैपिटल नहीं लिख सकते, इसीलिए उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। डेबिट करने से कैपिटल खत्म हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। 31,320 आया है, तो ये पैसा कैसे आएगा, आई विल शो यू लेटर इन दी कैपिटल अकाउंट टुडे। ठीक है, तो मतलब 31,320 रुपया उसको देना है और उसका पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर, ये याद रखेंगे। कुछ नहीं बोला होता है तो लोन में ही ट्रांसफर किया जाता है हमेशा। तो स्क्रीनशॉट हो गया सभी का? पीयूष दीक्षित स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके, अभी का जो रेड स्ट्रिप वाला बड़ा है, देखो सीज कैपिटल डेबिट टू सीज लोन वाला, ये साथ में लेना है सभी Yes, को। sir. हम आगे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था, जर्नल एंट्री पास करने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्री तो पूरा हो गया, अब हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग को पता है कैसे बनता है, जो जनरल एंट्री की है उसके हेल्प से भी बना सकते हो, डायरेक्टली भी। सो देखो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स नाउ वॉच योर स्क्रीन। ओके, जस्ट आई एम कमिंग टू दी revaluation account. So here first we will write the revaluation account, then we use the format of revaluation account just like a ledger. So here you can see left hand side क्या होता है revaluation में, डेबिट होता है ना, और राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपको पता है क्योंकि रेवोल्यूशन का जो लॉस होता है वो डेबिट में लिखते हैं और रेवोल्यूशन पे जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट में लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट, है ना। अब ये देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट आपके सामने है। सो रिवॉल्यूशन अकाउंट आपके सामने आ गया होगा। इसमें आप देखो जितना भी लॉस है, जिन जिन चीजों पे लॉस हुआ वो डेबिट में लिखा है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400, टू पेटेंट्स 4000, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 2000, ये तीनों लॉस है। प्रॉफिट किस पे हुआ था, स्टॉक पे। बाय स्टॉक 4000, बाय बिल्डिंग्स 12000, स्टॉक और बिल्डिंग में प्रॉफिट था। तो बाय ऑब्जर्वेशन you can see here your credit side is more because credit side is 16,000 और डेबिट साइड कितना है, सिर्फ 6,400 है। अगर देखा जाए तो हम दोनों जो ज्यादा है वो दोनों साइड लिखेंगे। तो 16,000 we will write in credit and debit both in the total column। हो गया। अब इसके बाद इस 16,000 में से 6,400 को माइनस करेंगे तो 9,600 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो ये कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। सो देखो यहाँ लिखा होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल, सभी ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। ध्यान रखना कितना ओल्ड रेशियो में, 5:3:2। सो 5/10 करेंगे तो 4,800, देन 3/10 तो 2,880, देन 2/10 तो 1,920। ये आ गया आपका। सो यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ऐसे आप सभी लोग ले लो। तनिष्का क्लियर है? सोमेश, सोमेश, सोमेश क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अमृता रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लियर है? यस सर। ओके, सो चलो हम लोग आते हैं अब कैपिटल अकाउंट पे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, आई होप। डन है, स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने ले लिया ना? यस सर। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड यू नो दैट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का जनरली क्रेडिट होता है क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी में दिया होता है। अगर कैपिटल एसेट्स में दिया होगा तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बट इस क्वेश्चन में सभी का कैपिटल लायबिलिटी में है तो बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी हमने लिखा है। आप लोगों के पास क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट होगा बैलेंस शीट का। आप देखो कैपिटल दिया होगा क्वेश्चन में, फॉर ए 50,000, फॉर बी
35,000 फॉर सी 25,000। तो हम तीनों का सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो आप सभी लोग, कैपिटल आ गया, ओपनिंग बैलेंस 50,000, 35,000 और 25,000, राइट। अब इसके बाद हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व बांटते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि पहला स्टेप क्या होता है जनरल एंट्री में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लेकिन कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, अब उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो उसमें क्या है, रिजर्व फंड। सो हम जनरल एंट्री कर चुके हैं, 6,000 रुपया रिजर्व फंड था, उसको हमने 5:3:2 में बांटा है। तो जो अमाउंट शेयर किया वही अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे ए, बी और सी में, ठीक है। तो देखो आप लोग ए बी सी को कितना कितना अमाउंट आ गया, 3,000, 1,800 और 1,200, राइट। सो ये हो गया इनका रिजर्व फंड। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपने बांटा है। सो आप देख लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 था, जिसको 1,600 एंड 400 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया इन देयर ओल्ड रेशियो। समझ में आ रहा है। इसके बाद गुडविल देखो राइट ऑफ करना होता है, तो हम यहाँ कैपिटल अकाउंट में स्टेप जो लिखे हैं गुडविल का उसी के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। सो गुडविल कहाँ लिखते हैं राइट ऑफ करने के लिए, ओल्ड गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो देखो डेबिट साइड में गुडविल लिखा होगा स्टूडेंट्स, टू गुडविल है ना। तो ओल्ड गुडविल कितना था, 6,000। सो 6,000 है तो 5:3:2 में शेयर करेंगे तो आएगा 3,000, 1,800 और 1,200। सो देखो अब आपके सामने स्क्रीन पे लिखा होगा ए, बी और सी में, है ना। अब इसके बाद रीवैल्यूएशन का इफेक्ट शेयर करते हैं। तो रीवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट हुआ है, सो प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में बटेगा पार्टनर्स कैपिटल के ओल्ड रेशियो में, ठीक है। कितना कितना हम लोगों ने शेयर किया था वही अमाउंट यहाँ पर पुट कर देंगे। सो देखो 4,800 ए को मिला है, 2,880 बी को और 1,920 सी को, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट। न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, जो पार्टनर्स फर्म छोड़ के जाता है उस पार्टनर को गुडविल दिया जाता है, और देता कौन है, जो पार्टनर बचे रहते हैं रिमेनिंग। तो इस क्वेश्चन में सी फर्म छोड़ के जा रहा है, तो सी के हिस्से का गुडविल हमने कितना कैलकुलेट किया था, 4,000, 20,000 टोटल गुडविल है। सी का शेयर 2/10 यानी 4,000। 4,000 को किसने दिया, ए ने दिया था और बी ने दिया था, किस रेशियो में, 5:3 में। तो 2,500 एंड 1,500 हमारे ख्याल से दिया था, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग ए कितना दिया है। आप देखो ए ने कितना दिया है, 2,500। देखो आपके स्क्रीन पे दिखा होगा, सी में 2,500 रुपया लिखा है। अब बी ने कितना दिया है, आप देखो यहाँ पर 1,500, बी ने 1,500 रुपया दिया, ठीक है। अब यही पैसा ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा ना, यहाँ ए का डेबिट होगा कैपिटल, बी का होगा क्या लिखकर, यहाँ 2 सीज कैपिटल, ध्यान रखना। तो 2 सीज कैपिटल लिखना है। तो देखो यहाँ आ गया, ए में 2,500 और बी में 1,500। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो देखो सब कुछ समझ में आ गया। अब रही बात सेटलमेंट ऑफ सी का, अब कुछ बचा नहीं, जितना मैंने दिया था वो सब कुछ हो गया है ना। अब सी के सेटलमेंट की बात रह गई। तो सी सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। जब कुछ नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, सी का पूरा पैसा सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आप देखो डेबिट साइड में लिखा है टू सीज लोन अकाउंट, जो आपको लास्ट जनरल एंट्री करवाया सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट, वो यहीं से गया है ना। तो कितना पैसा आएगा वो यहाँ देखेंगे। तो देखो आप सी का क्रेडिट साइड का जो टोटल है स्टूडेंट्स 35,520, 35,520 रुपए हैं। तो यही पैसा हम यहाँ पर भी लिख देंगे, पहले 35,520 डेबिट में। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, सी का डेबिट वाला कितना है 1,200, 1,200, इसको माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा। अब बैलेंस कितना बचेगा हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस देखो आप लोग माइनस करने पे 31,320 बचा। इसी अमाउंट से जनरल एंट्री किए होगे। कैपिटल अकाउंट कौन सा साइड है, ये डेबिट, तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, ठीक है। यही आप लोगों ने जनरल एंट्री में किया है स्टूडेंट्स, आप देख लो वहाँ पे, यहीं से टैली कर लो, अमाउंट सेम है ना 31,320 का, रेड स्ट्रिप में जो जनरल एंट्री रहा होगा स्क्रीनशॉट। अब तो ये हो गया सी का हिसाब किताब खत्म। अब क्या बचा, ए और बी। तो ए और बी का टोटल करेंगे तो टोटल कर रहे हैं, ए का 58,800 और बी का है 40,280। तो इन दोनों को पैसा यहीं लिखेंगे और इसमें से अब इधर ए का माइनस करेंगे और बी का माइनस करेंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लिख देंगे।
ठीक है, तो आप देखो बैलेंसिंग फिगर ए का कितना आया 53,300, 58,800 में से 5,500 माइनस करिए 53,300 आएगा। अब हम लोग बी का कैलकुलेट करते हैं। सो बी का कैलकुलेट करने पे आ रहा है 36,980 बैलेंस, जो बैलेंसिंग फिगर आया। आप ऐड करके माइनस करो इसको तो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि कैपिटल अकाउंट आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बनाना है। यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। जस्ट आई एम मूविंग फॉर द बैलेंस शीट। You can take the balance sheet. Balance sheet you all are knowing how to prepare. So have you taken a screenshot? Okay, बोलो। Done? ये जो ई का लोन अकाउंट है इसमें तो 33,320 आना चाहिए ना, 35,320 जो अच्छा, 520 हो से सकता है बेटा। वहां पर क्या लिखा है आपने जर्नल एंट्री में, क्या लिखा है? जर्नल एंट्री में हमने क्या लिखवाया था देख लो। मैंने बोला कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक। देखो आप उसमें, हाँ बेटा ये टोटल जो है ना, देखो टोटल एरर होगा बेटा, टोटल एरर होगा। तनिष्का यस सर। बेटा टोटल एरर होगा। यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है 35,520 मैंने लिखा है, ये शायद तुम्हारा कम आएगा। मैं जोड़ रहा हूँ 25, 26, 27, 2, 29, 31, 30 और एक 31,000 आ रहा है, 31, 32,000 समथिंग आएगा। देखो 32,000 समथिंग आ रहा है, 32,520। ठीक है, ठीक है बेटा। तनिष्का क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। हाँ बेटा, आप सभी लोग इसको करेक्ट कर लोगे। ये जो 35,520 मैंने बोला ना, कैलकुलेशन चेक कर लोगे आप लोग। वेरी गुड तनिष्का। तो यहाँ पर 32,520 आएगा, इसमें से 1,200 माइनस करेंगे तो लोन आएगा 31,320। सो यहाँ 35 जो है उसको 32 कर लेना सर आप लोग, ठीक है। बाकी और चेक कर लो, इन लोग का बैलेंस इतना ही आया होगा, यानी सीज लोन अमाउंट इज करेक्ट। सी का लोन सही है। यहाँ टोटलिंग बाय मिस्टेक आई हैड रिटेन 35। Okay, so now I am moving for the balance sheet. So balance sheet as at April 1st, 2018. Okay, so you will see here liability side and asset side. तो कैश बेटा कितना था पहले से देखो, कैश आपका 2000 था, तो कैश 2000 का 2000 ही है क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है ना। सन्ड्री डेटर आपका 8000 था, बट क्वेश्चन में लिखा था 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है। सो 5% आपने क्रिएट किया था रेवोल्यूशन में, तो 400 आप माइनस करके दिखाएंगे 7400। स्टॉक आपका एप्रिसिएट हो गया था 10% से, तो 40,000 का पहले था, 4000 से इंक्रीज कर गया तो 44,000 दिखाएंगे। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज आपका दिखाया गया है 13,000। बिल्डिंग में आपका क्या हुआ था, पहले बिल्डिंग कितने का था 60,000 का, बट उसका 20% से उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई है, तो इंक्रीज कर गई तो आप बढ़ाकर दिखाएंगे 72,000 हो गया, ठीक है। अब आते हैं लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में आप देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 का था, अब उस पे 2,000 रुपीज इंक्रीज कर गया, बोल रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,000 ज्यादा हो गया, तो 12,000 रुपया दिखाएंगे। सीज लोन जो कि पहले नहीं था, लेकिन अब चूंकि सी पार्टनर नहीं है तो सी का कैपिटल नहीं दिखाएंगे, सी के कैपिटल की जगह सी का लोन देखो हम दिखा रहे हैं 31,320। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में देयर इज नो चेंज, सो एज इट इज 5,000। नो कैपिटल अकाउंट, तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हम लिखे होंगे, जो नया वाला आया होगा 53,300 एंड 36,980। अब टोटल करेंगे तो 1,38,600 each. So I hope ki the question is clear to all of you. You can take the screenshot of 8 students. Now your class is almost over. If you have any queries, you can ask separately. You're done. Screenshot is done. बेटा screenshot हो गया? Okay. So now अब आपको कोई भी confusion है, आप अपनी query arise कर सकते हैं।